Morning students, welcome to the 12th lecture of power engineering. Today we are going to see about the two-stroke petrol engine. आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं two-stroke petrol engine के बारे में. So content of the today lecture is two-stroke petrol engine. आज हम बात करेंगे केवल और केवल two-stroke petrol engine के बारे में. First of all, we will see the introduction of two-stroke petrol engine. In two-stroke engine, the working cycle is completed in two stroke of the piston or in one revolution of the crankshaft instead of four stroke or two revolution of crankshaft as in the case of four stroke engine. Listen carefully, my dear students. When I was teaching about the four-stroke petrol engine or four-stroke diesel engine, that time I have taught you that in four-stroke petrol engine or diesel engine, the working will be completed in four-stroke or in two revolution of crankshaft. But what is the difference between four-stroke petrol engine or four-stroke diesel engine? या टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और टू स्ट्रोक डीजल इंजन. सबसे पहले फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक में अंतर क्या है उसको हम बात करेंगे. उसके बाद हम अंदर जो है सिलेबस के अंदर में जाएंगे. तो इंस्टीड ऑफ हियर यू हैव टू see that instead of four stroke we are going to complete the power, that is we are going to gain the power in two stroke itself. So in two stroke engine the working cycle is completed in two strokes of the piston or in one revolution of crankshaft instead of four stroke. तो फोर स्ट्रोक में चार स्ट्रोक होते थे और दो क्रैंक शाफ्ट का रिवॉल्यूशन होता था, लेकिन टू स्ट्रोक में केवल और केवल एक ही रिवॉल्यूशन होगा और दो स्ट्रोक होगा. Therefore, theoretically it will develop the twice power when operating the same mean effective pressure in two stroke engine. तो क्या होता है कि इसमें जो है ज्यादा पावर जो है जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है दो स्ट्रोक में जो है हमारा हो रहा है, तो दो स्ट्रोक जब हो रहा है तो यहाँ पर ट्वाइस पावर जो है डेवलप होगा. इन टू स्ट्रोक इंजन suction, compression, power expansion or expansion and exhaust stroke takes place in one rotation of crankshaft. देखिए टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, एक ही रिवॉल्यूशन में अर्थात एक ही रोटेशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट में चारों प्रोसेस हो जाएगा. कौन कौन सा प्रोसेस? सक्शन, उसके बाद कंप्रेशन, उसके बाद पावर या एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट. ठीक है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक. तो ये तीनों ये चारों जो है आपका एक ही बार में जो है पूरा हो जाएगा, एक ही रिवॉल्यूशन में जो है कंप्लीट हो जाएगा. जैसा कि हम फोर स्ट्रोक में देखे थे दो रिवॉल्यूशन लगा था, लेकिन इसमें केवल और केवल एक रोटेशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट होगा. टू स्ट्रोक इंजन हैज वन वर्किंग स्ट्रोक फॉर एवरी रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट. In two-stroke petrol engine, during suction stroke, air fuel mixture is introduced into the engine cylinder and a spark plug is used to ignite the air fuel mixture just before the end of compression stroke. ठीक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे. In two-stroke engine, during the suction stroke, only air is sucked into the engine cylinder. Two-stroke engine are used in mopeds, scooters, motorbike, ship and in aircraft developing the 2500 kilowatt or more. Four stroke engine are used in car, jeep, buses, truck, tractor and earth mover. देखिए टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन कहाँ कहाँ यूज होता है तो हमने आपको बता रहे हैं. तो सबसे पहले जो है आपको मालूम होना चाहिए टू स्ट्रोक जो है मोपेड्स में, स्कूटर्स में, मोटर बाइक में, शिप में, एयरक्राफ्ट में, ये सब में जो है यूज होता है. जहां पर जो है हमें 2500 किलोवाट से या 2500 किलोवाट से ज्यादा हमें पावर चाहिए वहां पर होता है. फोर स्ट्रोक इंजन जो है कार में, जीप में, बसेस में, ट्रक में और ट्रैक्टर में और अर्थ मूवर ये सब गाड़ी में यूज होता है. इन केस ऑफ टू स्ट्रोक इंजन द वाल्व्स आर रिप्लेस्ड बाय पोर्ट्स. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिएगा. टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, जैसे कि फोर स्ट्रोक में हम जो है वाल्व को देखते थे, इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व, लेकिन टू स्ट्रोक में क्या होता है, वाल्व के जगह पर पोर्ट्स होगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो है वाल्व नहीं होगा, पोर्ट्स होगा.
two rows of ports are different level are cut into the cylinder wall. These are known as exhaust port or transport port. The specific safe deflector is provided on the crown of the piston to prevent the loss of incoming fresh charge from. तो हम जो है इसको देखेंगे कि किस तरह से 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में क्या क्या डिफरेंस है। तो हम सबसे पहला डिफरेंस आपको बता दें कि 4 स्ट्रोक में जो है आपका वाल्व होता था, लेकिन 2 स्ट्रोक में आपको पोर्ट होगा। चलिए हम देखते हैं आपका प्रोसेस के बारे में, दैट इज कौन कौन सा स्टेज होने जा रहा है 2 स्ट्रोक में, उसको हम देखने जा रहे हैं। So working of 2-stroke petrol engine. In 2-stroke petrol engine, the cycle of operation is completed in 2 stroke of piston, namely compression stroke and power stroke. तो 2 स्ट्रोक में क्या होता है कि साइकिल जो है 2 स्ट्रोक में कंप्लीट हो जाएगा, उसका क्या नाम है, कंप्रेशन स्ट्रोक और पावर स्ट्रोक। दैट इज इन 1 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। Spark plug is used to ignite the air fuel mixture just before the end of compression stroke. देखिए यहाँ पर जो है हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं, तो पेट्रोल इंजन में हमने आपको बताया था कि स्पार्क प्लग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पार्क प्लग का क्या काम है, स्पार्क प्लग का काम है कंबसन को लगाना अर्थात आग लगाना। तो यहाँ पर जब कंप्रेशन प्रोसेस खत्म होने से पहले ही स्पार्क प्लग क्या करेगा, आग लगाने में आपको मदद करेगा, ठीक है। 2 स्ट्रोक इंजन हैव 1 वर्किंग स्ट्रोक फॉर 1 एवरी रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो है डायग्राम है आपका 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का। ऑल द 4 स्टेजेस आर कंप्लीटेड इन जस्ट 2 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन मूवमेंट। जितना जो चारों प्रोसेस है केवल और केवल 2 ही स्ट्रोक में जो है कंप्लीट हो जाता है 2 स्ट्रोक इंजन में। सो फर्स्ट स्टेज इज सक्शन स्टेज। So see the diagram, then you can understand, because here we have transfer port and we have inlet port and we have exhaust port, and we are going to talk about the petrol engine. So we have the spark plug. So in suction stage, in this stage the piston while going down towards the BDC, that is when the piston will travel from TDC to BDC, it uncovers both the transfer port and the exhaust port. देखिए जब पिस्टन जो है TDC से BDC की ओर आएगा तो क्या होता है कि ट्रांसफर पोर्ट को भी अनकवर कर देता है और आपको एग्जॉस्ट पोर्ट को भी क्या हो जाता है, ढक जाता है, जिसके चलते क्या होता है, द फ्रेश फ्यूल एयर मिक्सचर फ्लोस इनटू द इंजन फ्रॉम द क्रैंककेस थ्रू द ट्रांसफर पोर्ट। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको जो है फ्रेश एयर जो है अंदर आ जाता है। जब फ्रेश एयर जब आ जाएगा तो आपको जो है सेकेंड स्टेज कौन सा होगा, कंप्रेशन होगा, जिसको हम देखने जा रहे हैं। सो सेकेंड स्टेज इज कंप्रेशन स्टेज। तो कंप्रेशन स्टेज में क्या होता है, इन कंप्रेशन स्टेज, इन दिस स्टेज द पिस्टन व्हाइल मूविंग अप, लिसन केयरफुली, इन दिस स्टेज the piston while moving up, that is from BDC to TDC, first cover the transfer port। तो सबसे पहले कौन सा कवर हो जाएगा, तो सबसे पहले ट्रांसफर पोर्ट हो जाएगा कवर, and then the exhaust port। After that the fuel is compressed as the piston moves upward। During this stage the inlet port also opens and fresh air mixture enters into the crankcase। तो यहाँ पर क्या होता है कि फ्रेश एयर मिक्सर जो है आ जाता है, क्योंकि आपको जब इनलेट पोर्ट जब ओपन होगा तो आपका फ्रेश एयर जो है इंटर कर जाएगा। देखिए और यहाँ पर जो है आपका सबसे पहले जो है कंप्रेस हो जाता है, क्योंकि पिस्टन जो है जब मूव करता है अपवर्ड की ओर। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस while moving up, first cover the transfer port and then exhaust port। After that fuel is compressed। फ्यूल क्या हो जाता है, कंप्रेस्ड हो जाता है when the piston moves upward। जब पिस्टन जो है अपवर्ड में जाएगा तो फ्यूल जो है कंप्रेस हो जाएगा। अब फ्यूल जब कंप्रेस होगा तो मतलब कि कंप्रेशन प्रोसेस खत्म होने से पहले क्या होता है कि यहाँ पर जो है स्पार्क प्लग के द्वारा मतलब कि क्या होता है, आपका इग्निशन होना शुरू हो जाएगा, अर्थात कंबसन जो है स्टार्ट हो जाएगा। जब कंबसन स्टार्ट होगा तो थर्ड प्रोसेस जो कि एक्सपेंशन है या पावर स्ट्रोक है, उसमें जो है पावर का जनरेशन होता है, जिसे कि हम जो है अगला स्ट्रोक में देखते हैं। The third stage is expansion stage। See, before the piston reaches the TDC during the compression stroke, as I told you in the compression stroke, before reach the TDC, the charge is ignited
देखिए हमने आपको बताया था ना कि टीडीसी में जो है पहुंचने से पहले ही क्या होता है कि आपका जो है जो चार्ज है, चार्ज करने का मतलब एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर, वो क्या होगा, जलना शुरू हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग की मदद से जो है आपका जलना शुरू होगा। इट सडनली इंक्रीज द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इससे क्या होता है कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के दोनों बढ़ जाएंगे और अचानक चेंज हो जाएगा, क्योंकि अचानक किसी चीज में अगर आग लग जाता है तो वहां पर टेम्परेचर और प्रेशर तो बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। ड्यू टू दिस राइज इन प्रेशर द पिस्टन इज पुश्ड डाउनवर्ड विथ ए ग्रेट फोर्स। तो पिस्टन क्या होगा, नीचे आएगा अर्थात बीडीसी में आएगा। द हॉट बर्न गैसेस एक्सपैंड, और यहां पर जो है एक्सपेंशन प्रोसेस होगा ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ piston. During this expansion, some of the heat energy is produced, is transferred into the mechanical work. और यहीं पर अर्थात एक्सपेंशन स्ट्रोक में ही जो है पावर का जनरेशन होना शुरू हो जाएगा। देखिए एक्सपेंशन स्टेज में होता क्या है, पहले इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी क्लियरली दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन एक्सपेंशन स्टेज। व्हेन बिफोर गोइंग टू कंप्लीट द second process, that is combustion process, the ignition will be a start, that is the combustion process will be happen. When the combustion will happen, then the air and fuel mixture will burn, and due to this burning of air and fuel mixture there will be the generation of power in expansion stage। और वो क्या करता है कि जब बर्निंग होगा फ्यूल और एयर का मिक्सचर का, तो वहां पर जो है टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर और प्रेशर जब बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, पिस्टन को धक्का देगा। तो पिस्टन को धक्का देगा तो यहाँ पर जो है पिस्टन क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। दैट इज पिस्टन विल ट्रेवल फ्रॉम अपवर्ड, दैट इज टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। द हॉट burn gases expand due to the speed of piston. During this expansion, some of the heat energy is produced, is transferred into the mechanical work। और जो heat energy जो प्रोड्यूस होगा उसको मैकेनिकल वर्क में हम लोग यूज कर लेंगे। मान लीजिए गाड़ी चलना है तो गाड़ी चलेगा, ठीक है, तो आपका रोटेशन ऑफ जो है, आपको मान लीजिए क्रैंक शाफ्ट कराना था तो क्रैंक का जो है रोटेशन होगा, जिसके चलते जो है आपका गाड़ी जो है चलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो है एक्सपेंशन प्रोसेस है, एक्सपेंशन स्टेज है जहां पर जनरेशन ऑफ पावर होता है। लास्ट स्टेज है एग्जॉस्ट स्टेज। इन दिस स्टेज द एग्जॉस्ट पोर्ट विल बी ओपन एट द पिस्टन मूव डाउनवर्ड। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब पिस्टन जो है आपको जब डाउनवर्ड में जाएगा तो यहाँ पर जो है आपका जो है पोर्ट जो है दैट इज एग्जॉस्ट पोर्ट जो है ओपन हो जाएगा, और जितना भी कंबशन का जो प्रोडक्ट था, जो मतलब बेकार का था, द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन फ्रॉम द इंजन सिलेंडर आर एग्जॉस्टेड थ्रू द एग्जॉस्ट पोर्ट इनटू द एटमॉस्फेयर, और वो जो है बाहर निकल जाएगा। और दिस साइकिल और दिस कंप्लीट द साइकिल एंड इंजन सिलेंडर इज रेडी टू सक द चार्ज अगेन। ये जो है क्या होगा कि जब बाहर निकलेगा तो फिर से वही प्रोसेस करने के लिए तैयार हो जाएगा। दैट इज जो है सक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही एग्जॉस्ट होगा उसके बाद जो है सक्शन हो जाएगा, फिर जो है कंप्रेशन होगा, एक्सपेंशन होगा, एग्जॉस्ट होगा, और ये जो है साइकिल चलते रहेगा और जो है पावर जो है जनरेट होते रहेगा। तो ये था आपका 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल। तो ये जो है बुक का लिस्ट दिया गया है, अगर आप रेफर करना चाहते हैं तो बुक को रेफर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने बात किया 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।